2 minutes just sitting. Then after we'll start our class. Good afternoon. I hope that audio video both are clear. चले जी. So law of motion topic. In that, if you have any doubt in the concept, you can ask. Otherwise, we'll take the numerical homework. These question नहीं पूछेंगे. I want to explain that homework questions. Otherwise, we'll continue level 2. ठीक है ना? चलिए. Today will discuss some important questions and quite tough also. ठीक है? So important and tough questions we'll discuss today. क्या हुआ भैया? हाँ वो हो रहा है. वो some setting is going on in the camera. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 we completed ना. Now we'll take the question number 12. We'll take and we'll continue that one. उसके बाद क्या है, बस फ्री बॉडी डायग्राम्स है ना हमारे पास. तो फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस quite easy. In that also I'll tell some important question by tomorrow. Today we'll take some important question. ठीक है? तो it will help you out to solve the numericals. ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर and page number is 44. Question number 12 I am going to take. ठीक है? First I am taking right that law of motion. In that we'll discuss ये तो कैमरे से ऊपर ही चलेगा. What I wrote. Law of motion. ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो भाई. फिजिक्स हैं जी. चलिए भाई. तो पेज नंबर व्हाट आई टेल यू 44th पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12 विल डिस्कस. पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 12 विल डिस्कस. ठीक है? चलिए भाई. थोड़ा कैमरा जूम वगैरह हो रहा है तो नो प्रॉब्लम फॉर दैट. पेज नंबर 44. ओपन द मटेरियल वॉल्यूम 2. व्हाट वी हैव. I hope that everyone be ready with the volume 2. Page number 44 question number 12. ठीक है? चलिए भाई. भाई कैमरा जूम वगैरह कर रहा है चुप थोड़ी थोड़ी देर में. चलो क्वेश्चन नंबर 12 I am going to read. Those who don't have material read that one. चले जी. 6 forces lying on a horizontal plane and forming angle 60 degree relative to the another one are applied the center of homogeneous sphere with a mass of 6 kg. First we'll write the given. How much angle it is taking that? 60 degree. Mass is how much? It is given in the question, which is 6 kg. अच्छा जी, बहुत बढ़िया. 6 kg mass it is given in the question and all the forces are having angle 60 degree between them. Force of radially outward. अच्छा. कंटिन्यूअसली कितना फोर्स है भाई? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3, 4, 5, 6 न्यूटन. अच्छा, फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड. चलो भाई, फर्स्ट विल मेक द डायग्राम एंड बिटवीन द फोर्सेस हाउ मच एंगल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. हाँ जी, 60. और मास कितना है बॉडी का जिस पर वो पड़ रहा है? 6 kg. एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर. कोई नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्वाइट टफ बट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लेसन. Important question. चलो भाई. Can you see that one? यहाँ तक है नहीं. चलो. Radially outward. This body which of mass is 6 kg. The body which of mass is 6 kg and the force which are radially outward and angle between the forces between them is how much? Angle between the forces is 60 kg. अच्छा. देखो भाई जरा देखो एक मिनट. Radially outward is nothing but चलो भाई आउटवर्ड निकालेंगे. दिस इज द फोर्स, दिस इज आल्सो फोर्स. बराबर.
Radially outward the forces are, it should be in opposite direction. ये लीजिए. How many forces are there? 6 forces are there. Don't you think that it is a radially outward, बाहर जा रहे हैं? तो इसको मैंने first नाम दे दिया. And how much it is given in the question? First force is 1 Newton. Second force is how much it is given? F2 is equal to 2 Newton. In the same way, F3 is equal to 3 Newton. F4 is equal to what it is given? 4. F5, 5 Newton. F6, how much it is given? 6 Newton. These are the force question in the question it is given and which are radially outward. And angle between them is how much? ये zoom बहुत हो रहा है जी, कभी हो रहा, कभी जब इसको देखो तब वो clear आ रहा, वरना फिर ऐसे जाओ. Angle between them is how much? 60 degree. हाँ, देखो भाई जरा, how much angle between the forces? 60 degree. थोड़ा सा detail draw कर लेंगे. Then when you see after 1 month, 2 month, 1 year, 2 years, then you should be clear about the diagram. 60 degree is the angle. Barabar, how much angle between the forces is 60 degree. This is the question what we have, and what we need to find out, acceleration of the body. What we need to find out, acceleration of the body. Question जरा ठीक से कर लो पहले. What it is given that between the forces is, हाँ जी इतना, और क्या दिया हुआ है? 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton. थोड़ा सा मैं स्लो ही चल रहा हूँ because students still joining. Those who are coming late, तो उनके लिए भी जरा मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ. Mass is how much it is given in the question? हाँ जी 6 kg mass of the body. बराबर, चलिए भाई. Acceleration we need to find out. अरे कोई क्वेश्चन है क्या तुम लोगों का? ये क्वेश्चन हो गया मेरा. एंड क्लियर होगा, रुको एक मिनट. चलो भाई बहुत बढ़िया. Acceleration if I need to find out, first we have to check that 1 force 2 Newton in this direction. स्टार्ट करेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े फ्रैंकली विल स्टार्ट दैट वन. देखो भाई अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील करो ये टर्म. दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, हाउ मच इट इज? 6 kg. देखो फील करो, इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन, इजी नहीं है, इजी नहीं है ये क्वेश्चन. सुनो गौर से. देखो इफ आई एम टेकिंग दिस फोर्स इज 1 न्यूटन विच इज इन दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 4 न्यूटन. मतलब 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, 4 न्यूटन एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. द नेट रिजल्ट विल बी 3 न्यूटन एंड दैट फोर्स शुड बी इन दिस डायरेक्शन. F इज इक्वल टू 3 न्यूटन. तुम समझे मेरी बात? बाद में नहीं पूछेंगे, घुसा मार दूंगा मैं. और से देखना फिर इधर. वंस अगेन यू हैव टू चेक. हेलो, ये फोर्स कितना? 1 न्यूटन in this direction. This Newton is how much? 4 Newton in this direction. What is the net force? Net force is 4 minus 1. 1. And which direction? Where you have the more force. Force 4 Newton और ये 1 Newton. कौन बड़ा है भाई? F4 Newton बड़ा है. अरे yes or no? 4 minus 1 is nothing but 1. हमारे टीचर तो वही पढ़ा है. तो how much net force? 3 in this direction. बहुत बढ़िया, ये दोनों हो गए. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. दिस इज हाउ मच? 6 न्यूटन एंड दिस इज हाउ मच? 3 न्यूटन. बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, 3 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. नेट इज, हाँ जी, कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में. ठीक है, इसको पार्टिकल एक सिंगल ले लेंगे. ये पार्टिकल सिंगल पार्टिकल विच ऑफ मास इज हाउ मच? 6 kg. चलो कौन से तरफ है? ये तरफ है. F इज इक्वल टू नेट फोर्स इज हाउ मच? 3 न्यूटन. बराबर, आगे बढ़ो. दिस वन इज कंप्लीटेड. दिस फोर्स इज हाउ मच? 2 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज हाउ मच? 5 न्यूटन. नेट फोर्स इज हाउ मच? हाँ जी 5 माइनस 2 3. F इज इक्वल टू 3 न्यूटन. समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन इजी नहीं है. ये एंगल कितना? 60 डिग्री. ये एंगल कितना? 60 डिग्री. स्लो स्लो करेंगे, ठीक से करो, घुसा मार देना है गलत करे तो. चलो बोर्ड तो क्लियर हो गया. नाउ विल फाइंड आउट अवर कैलकुलेशन. अंडरस्टैंड एवरीवन? देखो भाई कुछ भी नहीं है. ये फोर्स 6 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन,
3 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, नेट रिजल्ट 6 माइनस 3, हाँ 3, और बड़े फोर्स की तरफ होगा, देखो वो F3, ये बड़ा है 5 न्यूटन और ये अपोजिट में 2 न्यूटन, 3 न्यूटन यहां पर आएगा, एंड 1 न्यूटन और 4 न्यूटन, 4 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन इज हाउ मच, 3 न्यूटन, बराबर। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया, नाउ वी कैन फाइंड आउट दैट। अभी इसके देखो कंपोनेंट वगैरह लेकर हमको सब चीजें फाइंड करना है, रेडी, चलो भाई। कुछ भी नहीं है, सिंपल कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट हमको सब मालूम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई, वन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये फोर्स के कंपोनेंट निकाल लो जरा, फोर्स के कंपोनेंट निकालो भाई, विच फोर्स इट इज, 3 न्यूटन, बराबर। ये जो फोर्स है विच इज हाउ मच, 3 न्यूटन, ये फोर्स के कंपोनेंट आई एम गोइंग टू टेक हाउ मच एंगल, 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा, F cos 30, यानी कि 3 cos 60, बराबर ना। ये F के दो कंपोनेंट कितने न्यूटन है, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन के 2 कंपोनेंट, cos थीटा यहां पर आएगा, sin थीटा यहां पर आएगा, अरे यस और नो, कितना भाई, 3 sin 30, अरे 60 है ना एंगल, ये कितना है, F इज इक्वल टू 3, कौन है रे बाबा, तो F के दो कंपोनेंट निकाला, कितना है, 3 sin 60, और ये देखो ये F के दो कंपोनेंट निकाल रहा हूं, फील करो यहां पर बाद में मुश्किल हो जाएगी, इट इज नॉट ए इजी क्वेश्चन। फोर्स के दो कंपोनेंट, F cos 60, F sin 60, बराबर, थीटा यहां पर है 60 डिग्री, तो cos के दो कंपोनेंट, F के दो कंपोनेंट, cos थीटा यहां पर आएगा, sin थीटा यहां पर आएगा, ऑलरेडी 3 न्यूटन इट इज देयर, वहां पर तो पहले से 3 न्यूटन इसका था, ठीक है। चलिए ये cos 60 के भी, F के ये के इसके भी 2 कंपोनेंट, एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, F cos 60, और दूसरा कंपोनेंट यहां पर आएगा, F इज नथिंग बट 3 न्यूटन ना, 3 cos 60, और ये कितना आएगा, 3 sin 60, 3 sin 60, ये समझो जरा, फील करो, फील करो, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए हाथ से चले जाएगा फिर। वन फोर्स इज 3 न्यूटन, अनदर फोर्स इज 3 cos 60, उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स है, 3 cos 60, अरे यस और नो, तो एक्स एक्सिस वाला पहले ले लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील इट, ये क्वेश्चन को फील करो आप। एक फोर्स है F इज इक्वल टू 3 न्यूटन, दिस वन, और दूसरा फोर्स कितना है, 3 cos 60, बराबर ना, ये आपका मास हो गया M, इसके अपोजिट में कितना फोर्स है, 3 cos 60, क्लियर, अरे यस और नो, समझ नहीं क्वेश्चन, चलो देखो, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, बताओ कितना होगा, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, एक्स एक्सिस पर नेट फोर्स कितना होगा, 3 प्लस 3 cos 60 माइनस अपोजिट में है 3 cos 60, हाँ जी, अभी क्लियर है मेरी वॉइस, पेज नंबर लिखाना जी बोर्ड पर, सच सीनियर है वो, क्वेश्चन नहीं लिखता, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम इस क्वेश्चन है। हाँ माइक कनेक्ट हो गया, चलिए, तो डायग्राम इस क्वेश्चन है अपना, I hope that this one you understand. Force is 3 Newton and one other force on the x-axis. Only x-axis वाले देखेंगे. X-axis वाले force 3 Newton, 3 cos 60. Opposite में कितना है भाई? 3 cos 60. अच्छा, मैंने लिख दिया. 3 cos 3 Newton, 3 cos 60, और ये देख लो डायग्राम सेपरेट भी मैंने कर दिया इसको ताकि फील आ जाए बच्चों को। तो x-axis पर फोर्स कितना मिला मेरे को? x-axis पर फोर्स ऑन I गॉट दैट 3 न्यूटन. तो x-axis पर बोल के मैंने I लगा दिया वहां पर. I know very well कि एक्स एक्सिस पर फोर्स कितना, ये कितना मिलेगा अपने को. चलिए भाई आगे बढ़ेंगे.
y एक्सिस का भी देख लेंगे। तो y एक्सिस पर हाउ मच फोर्स वी हैव, देखो भाई 3 sin 60 और 3 sin 60 ऑन द y एक्सिस। तो मैं यही डायग्राम में आई कैन ड्रॉ दिस वन। टू फोर्सेस है, देखो पहला है f यानी कि 3 sin 60 और दूसरा है 3 sin 60। अच्छा, दोनों भी 3 sin 60 3 sin 60 है। ले ऊपर चले जरा वो दीवार के, दोनों भी है आपके 3 sin 60 3 sin 60 ऑन द y एक्सिस। ये x एक्सिस था, दिस इज y एक्सिस। नेट फोर्स ऑन y एक्सिस फील करो जरा, नेट फोर्स ऑन y एक्सिस कितना है, y एक्सिस पर 3 sin 60 प्लस 3 sin 60 कितना हो रहा भाई, 2 into 3 sin 60 बराबर sin 60 is nothing but root 3 by 2। sin 60 is how much, root 3 by 2। ठक ठक तो कितना आया 3 root 3 न्यूटन on the force on the y axis। force is on the y axis how much, force is on the y axis। मैं देखो जरा डिटेल पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करो डायग्राम वगैरह, और सिंपल वे में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वरना फिर ठक ठक कंपोनेंट निकाल के ऐसे पुट कर दिया तो फिर तुम लोग पागल हो जाओगे। फिर इधर एक्स एक्सिस पर हाउ मच फोर्स इज देयर 3 न्यूटन, वाई एक्सिस पर कितना फोर्स भाई 3 रूट 3, और मैं इसको क्या जे लिख दूं, बाय सीइंग दैट आई डॉट आई कैप जे कैप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ऐसे ही होता, लेट आ रहे होंगे। चलो भाई फिर से देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बीच में बच्चे आ गए हमारे देर से। देखो भाई मास है कितना है 6 kg, एक बॉडी है सर्कल जिसका मास कितना है 6 kg, और इस पर 6 फोर्सेस आर एक्टिंग, 5 और 6 फोर्सेस आर एक्टिंग एंड रेडियली आउटवर्ड। इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट द फोर्सेस आर रेडियली आउटवर्ड। तो मैंने 6 फोर्सेस ड्रॉ, जो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 5 6, टोटल 6 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए पूरे रेडियली आउटवर्ड, and we know very well this cancel this one, this force is cancel this one, this force is cancel this one, है ना। तो हमने देखा जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड द एंगल बिटवीन देम हाउ मच इट इज गिवन 60 डिग्री। पूरे जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो फोर्सेस आएंगे वो कितने आएंगे, हाँ एक आएगा F इज इक्वल टू 3 न्यूटन, एक आएगा F इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ये आएगा F इज इक्वल टू 3 न्यूटन। नाउ आई एम टेकिंग आउट द कंपोनेंट ऑफ दैट, ये 3 न्यूटन के ये जो फोर्स है 3 न्यूटन, इसके 2 कंपोनेंट ले रहा हूं, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो F cos F इज नथिंग बट 3 ना, 3 न्यूटन 3 cos 60 और इसका परपेंडिकुलर 3 sin 60, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट F cos 60 F sin 60। फिर ये फोर्स के 2 कंपोनेंट, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट, cos थीटा यहां पर आएगा, sin थीटा फिर यहीं पर आएगा। दैट्स व्हाई देखो इसका ये है sin 60, ये फोर्स का sin 60 यहां पर है, ठीक है। चलिए तो आप देखो एक्स एक्सिस पर हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर 3 cos 60 3 cos 60 बराबर 3 cos 60 3 और 3 cos 60 ऑन द एक्स एक्सिस। ये डायग्राम में सेपरेट करके भी ड्रॉ कर रहा हूं, F is equal to 3 F is equal to 3 cos 60 F is equal to 3 cos 60, नेट फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दैट्स व्हाई दैट नेगेटिव आया। This and this get cancelled. How much force is left on the x-axis? 3i cap. Same way I can find out that y-axis पर कितना force है? 3 sin 60, 3 sin 60. ये लो इसका separate diagram भी है। तो कितना हो गया 2 into 3 sin 60. Sin 60 is nothing but root 3 by 2. ये cancel होकर y-axis पर इतना force आया। What we need to find out, हमको find क्या करना है? Net force find करना है। Sorry, acceleration find करना है। ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा सा मेट कर, मैं अगेन आई एम गोइंग टू राइट, किधर मेट, ये मेट दूं, अगेन आई एम गोइंग टू राइट व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अच्छा जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 2 फोर्सेस है, एक्स एक्सिस पर कितना है 3i, वाई एक्सिस पर हाउ मच 3 रूट 3। अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों पर फोर्सेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। F is nothing but fx square plus fy square
2fx fy cos 90 बराबर ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता, इसमें तो कोई शक भी नहीं है, घुसा मार देना है मैंने। cos 90 इज नथिंग बट 0, तो f कितना हो गया भाई, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर। इसको आप नेट भी बोल सकते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स फील करो, नेट फोर्स कितना भाई, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर। लगा लो, एक्स एक्सिस पर हाउ मच फोर्स वी हैव 3, हाँ 3 स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस पर हाउ मच 3 रूट 3, अरे बराबर लगाओ वाला 3 3 9, 9 इंटू 2, हाँ हमारे 3 स्क्वायर 9 ही होता बोले टीचर, हमारे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बचता बोले टीचर, 9 2 18, 9 प्लस 18 कितना हो रहा भाई, रूट 27। क्या बोलते कितना भाई, रूट 27। अरे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 3 स्क्वायर 9 होता, हमारे टीचर तो 9 बोले थे, ओ बराबर 9 ले रूट 3 है ना यार इधर, 3 रूट 3 है, अरे 3 रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बचेगा, तो कितना बचेगा, 9 3 27, 27 प्लस 9 36, अरे बराबर ना 36, तो एफ नेट हमको कितना मिल गया 36, 6 कर ले सकते मेरे ख्याल से, फिर भी गलत हो रहा है क्या मेरे पास, 27 36 6 बराबर, 36 का 6 कर लो, कोई परेशानी नहीं है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, इसको आप 6 भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है, इज इक्वल टू 6 बराबर, 6 इज द फोर्स, नेट फोर्स। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, what we need to find out, acceleration, acceleration is nothing but a is equal to f by m, है ना, a is equal to कितना भाई f by m, तो लगा लो वैल्यू, a is equal to f कितना है 6 by मास कितना है 6, कितना हो गया खट खट 1, एक्सेलरेशन कितना 1, जान निकल गई सबकी, बोले फिजिक्स को आसान समझे थे, हाँ गुड जी, एक्सेलरेशन गुड, वन स्टूडेंट डिड दैट, शाबाश जी। a is equal to f by m ना, देखो फोर्सेस शुड बी कैंसिल ईच अदर, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये फोर्स को कैंसिल करेगा, ये फोर्स को कैंसिल करेगा, फ्रॉम बिगिनिंग ऑनवर्ड्स आई टेल यू द सेम थिंग, ये फोर्स को कैंसिल करेगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दैट, प्रोसीजर देख लो एंड यू शुड फॉलो दैट वन, टफ है, प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली यू विल गेट द आंसर। तो 2 फोर्सेस वी गॉट दैट, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, सो वी नीड टू डेफिनेटली शुड कन्वर्ट इनटू नेट फोर्स, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अलग अलग लेकर वी कैन नॉट फाइंड आउट, तो रिजल्टेंट वी नीड टू टेक आउट कंपलसरी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, थीटा मतलब 90, एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 रहता, बराबर ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो cos 90 तो हमारे टीचर तो बोले थे 0 ही होता बोल के, a is equal to f by m, acceleration I got 1, तेज कराओ बोलता, और तेज करा देता हूं मैं, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस है ना ये, सर्कल पे गोल घूम रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ये इसको ही बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, ये जो डायग्राम बन रहा है ना इसी को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकल रहा है, अंदर भी जा सकता है ना फोर्स, देखो रेडियली इनसाइड भी तो जा सकता है ना, हेलो, अरे बराबर है ना, आउटवर्ड करना है इसे। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया भाई, ऑप्शन 3 गुड, अब स्टूडेंट सुन रहे हैं जी मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है बट प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, सेम पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट ही करेंगे, अननेसेसरी व्हाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम। कंप्लीट कर लो जल्दी, ये पेज नंबर 44,
क्वेश्चन नंबर 13। देखो मैं क्वेश्चन एक बोर्ड पर नहीं लिखने वाला हूं. व्हाट आई ड्रॉ द डायग्राम दैट इज ओनली क्वेश्चन. ठीक है, ड्रॉ करेंगे डायग्राम, वही आपका क्वेश्चन होगा. बाय सीइंग डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो नीड टू वरी अबाउट द क्वेश्चन. कौन सा बेटे? f इज इक्वल टू 1 क्या? एक्स एक्सिस पे एक फोर्स तो पहले से ही बच रहा था ना भाई. ये f इज इक्वल टू 3 तो पहले से ही बच रहा था. दोनों अपोजिट. 4 माइनस 1 3. ये फोर्स तो 3 तो पहले से ही था. 4 माइनस 1. अलबत्ता ये 3 cos थीटा हम कंपोनेंट से नहीं कराए, क्योंकि ये फोर्स जो है बीच में जा रहा था ना, तो बीच वाला फोर्स वी कैन नॉट टेक. दैट्स व्हाई वी शुड टेक आउट द कंपोनेंट ऑफ दैट. और ये मेथड है, यही रूल है, यही फॉलो करेंगे. देखो भाई फोर्स बीच में जा रहा है, तो आई डोंट नो हाउ मच फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस, हाउ मच फोर्स ऑन द वाई एक्सिस. बीच वाले को कंपोनेंट निकालना जरूरी होता है. तो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर. तो दैट्स व्हाई वी टेक आउट द कंपोनेंट ऑफ दैट. वरना बीच में जो फोर्स जा रहा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर फाइंड करना. तो इसके लिए कंपोनेंट निकालते हैं. ये फोर्स था 3, तो ये एंगल था थीटा, तो एफ कॉस थीटा इन द सेम वे एफ साइन थीटा. आप खुद करो बेटे, क्वेश्चन अच्छा है आपका, बट बेसिक है ये. तो ये फोर्स हमारे कोई काम का नहीं है. दिस 3 न्यूटन इफ यू वांट टू यूज, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस. पता कहां है किधर है वो, कितने एंगल पर है वो डोंट नो ना. तो दैट्स व्हाई वी शुड टेक आउट द कंपोनेंट ऑफ दैट. इसका इसीलिए कंपोनेंट निकाला जाता है. तो वी नो आफ्टर दैट कि हाउ मच फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस, हाउ मच फोर्स ऑन द वाई एक्सिस. देखो एक्स एक्सिस पर कितना फोर्स है? 3 cos 60. 3 cos 60. वैसे ही वाई एक्सिस पर हाउ मच फोर्स? हाँ जी, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ेंगे भाई. क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13 13. इंपल्स के क्वेश्चन. इंपल्स के क्वेश्चन विल डू. ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m. अच्छा, इनिशियली एट रेस्ट, यू जीरो लिख लो. Initially as stressed is acting upon the variable forces f brief interval of time t. It began to move with a velocity u after the force stop acting. f as shown in the figure. Figure देख लेते जाओ. Function of time. Curve of curve is a semicircle. अच्छा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो भाई. पढ़ो क्वेश्चन एक बार, समझ में आ जाएगा. देन आफ्टर आई तो मैं तो कैसे भी एक्सप्लेन कर ही रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 13. रीड द क्वेश्चन. Particle of mass small m initially at rest is acting upon a variable of forces. वो पार्टिकल है जो रेस्ट पर है, उस पर फोर्स लग रहा है, ठक ठक ठक, f नाम का. ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम t टाइम तक. ठीक है. इट बिगेन टू मूव विद ए वेलोसिटी u. समझो बात को, फोर्स लग रहा है, पहले रेस्ट पर था, फोर्स लगा और t टाइम तक उसने फोर्स लगाया उस पर. अब वो मूव करना शुरू हुआ, इतने इनिशियल वेलोसिटी u. पहले कैसे था? रेस्ट पर था. फोर्स लगाने पर स्टार्ट मूविंग दैट विथ ए वेलोसिटी u. आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, f as shown in the figure. फिगर में दिया हुआ है विथ फंक्शन ऑफ टाइम के साथ, ग्राफ है. द कर्व ऑफ द सेमी सर्कल. कर्व उधर कैसा गिवन है? सेमी सर्कल. फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम व्हाट यू हैव इन योर मटेरियल. तो स्टूडेंट भी लिख लेंगे, दोज हु डोंट हैव मटेरियल. और मटेरियल है क्यों नहीं, पहले ये बात बताओ. ये फोर्स है आपका, और ये है आपका फंक्शन ऑफ टाइम. और ये मैक्सिमम फोर्स कितना है भाई? एफ नॉट. दिस मैक्सिमम फोर्स इज हाउ मच? एफ नॉट. ये हो गया टाइम. टी इज नथिंग बट टाइम. ये एफ इज नथिंग बट फोर्स. और मैक्सिमम फोर्स हाउ मच इट इज गिवन? एफ नॉट. बराबर. चलिए भाई, और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? वेलोसिटी हमको फाइंड करना है. u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन चेक कर लो, उसमें u की वैल्यू गिवन है. तो u इज इक्वल टू दैट इज क्वेश्चन मार्क. थोड़ा सा आपको यहाँ पर एलिप्स वेलिप्स की बात होना चाहिए. सेमी सर्कल है ना, तो एरिया वगैरह आपको अगर कुछ नहीं मालूम है तो आई एम गोइंग टू राइट जस्ट टू बटीफाई दैट वन. अगर अब तक कुछ नहीं मालूम है इसमें से, एरिया और फॉर्मूला एलिप्स का और समथिंग, तो देन यू बटीफाई दैट वन एंड यू विल यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Draw the diagram before I start.
दोज हु डोंट हैव मटेरियल डायग्राम ड्रॉ करिए, दोज हु हैव वो भी करिए। अरे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे भाई। फर्स्ट यू टेल मी दैट, हमको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ना, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट यू टेल मी दैट एरिया ऑफ एलिप्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ एलिप्स? अरे मुझे जहां तक याद है एरिया ऑफ एलिप्स इज नथिंग बट पाई ए स्क्वायर। आपको नहीं मालूम है तो लिख लो भाई, इसमें क्या है। एरिया ऑफ एलिप्स कितना भाई? पाई ए स्क्वायर, पाई ए बी ना, एरिया ए बी लिख लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ जो भी है। बताओ जरा क्वेश्चन। हाँ जी, ए इंटू बी। अब देखो इन दैट वी हैव ओनली हाफ ऑफ द पैराबोला, हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है ना अपने पास, तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकाल सकते हैं भाई? हाफ कर लो इसका, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इसका आधा कर लेंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया भाई? पाई ए बी बाई 2। फील करो यहाँ पर, लेंथ इनटू ब्रेथ, ए और बी के वैल्यू फर्क ना को पड़ो, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो, नहीं तो लेंथ कितना है अपने पास? ए कौन है? मैं इस पास से नहीं लिख रहा हूँ, ए और बी। ए कौन है? फोर्स है। बी कौन है? टाइम है। टाइम कितना ले सकते हैं भाई जरा देख लो, आधा ले सकते हैं, टी बाई 2। अरे बराबर ना, टाइम कितना ले सकते हैं भाई? टी बाई 2। तो बी की प्लेस पर अपन ले सकते, ए की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं भाई? एफ नॉट टोटल फोर्स, और बी की प्लेस पर लिख सकते हैं आधा टाइम, टी बाई 2। तो डेल्टा बी कितना हो गया भाई मेरे पास? टाइम, सॉरी पाई एफ नॉट टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया भाई? पाई एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 4। ये चेंज इन मोमेंटम है, और अपने को फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी। फील करो जरा यहां पर कितना है? फोर्स है ना, और बी क्या है अपने पास? टाइम, वो भी आधा लिख लो। कंप्लीट सर्कल के लिए पूरा टाइम, आधे सर्कल के लिए आधा टाइम, आधा सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल के लिए पूरा टाइम, टाइम पीरियड। खैर अभी वो नहीं आए चीज, तो कंप्लीट अगर सर्कल इफ इट इज टेकिंग देन इट इज ए टी टाइम, अगर आधा सर्कल लो तो टी बाई 2। फील कर लो जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बिकॉज बेसिक नॉलेज हमारे पास टाइम पीरियड और समथिंग वी डोंट नो। कंप्लीट सर्कल होगा तो कंप्लीट टाइम पीरियड, आधा सर्कल होगा तो आधा टाइम पीरियड, तो दैट्स व्हाई बी की प्लेस पर मैंने टी बाई 2 आई एम पुटिंग। चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट, हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। फाइनल वेलोसिटी तो मेरे ख्याल से 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहा है। अरे मैं क्या गलत हूं? हाँ देखो, बाद में वो स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी कितनी है इनिशियल उसकी? यू, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो लगा लो वैल्यू जरा। डेल्टा पी की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई? कैन यू सी दैट? m into v, because since u is equal to 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना मिल गया मेरे को? दिख रहा ना? हाँ जी चलो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना मिल गया? mv। v की जगह पर कितना दिया जी? सॉरी सॉरी, v0 है ना, v0 है, u की जगह पर u दिया ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बाद में कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी हाउ मच? u ओनली। रख लो वैल्यू। दिस इज इक्वेशन सेकेंड और दिस इज इक्वेशन 1। सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। फाइनल भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान नको बेकार के। एम यू इज इक्वल टू क्या बनता भाई? पाई एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 4। तो u कितना बन गया भाई मेरे पास? पाई एफ नॉट टी बाई 4m। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिजिक्स का ज्यादा काम नहीं है इसमें। हाँ जी, अब बच्चों को याद है, शाबाश। टफ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वरना इजी पढ़ा देता। बड़े हो गए ना अपन, कल छोटे थे, 24 घंटे बड़े हो गए अपन। सो टफ क्वेश्चंस।
फील करो, फील करो, टफ क्वेश्चन है। ये अच्छा डायलॉग है तुम लोगों का, सर एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो भाई, बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी है जिस मास m है और समथिंग, अब इफ यू वांट टू ड्रॉ दैट बॉडी मास और समथिंग, ये बॉडी है, ये ऐसे यूं सर्कल डाल लो, स्टोन वगैरह समथिंग, इस पर मास m है, इस पर वेलोसिटी लग रही है, वही आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। कुछ फोर्सेस लग रहे हैं भाई, पर क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से, यूं करके जा रहे हैं। खैर ये सर्कल बना था वैसे, मगर ये आधा सर्कल बनाया है इसमें। तो एरिया ऑफ द एलिप्स हम कितना लेते हैं, पाई ए बी। ए क्या है मेरे पास, फोर्स ले लो, बी को ले लो, टाइम ले लो जो गिवन है इन द क्वेश्चन। टाइम में आधे सर्कल का है, आधे सर्कल का टाइम इज नथिंग बट बी के प्लेस पर आधा टाइम, टी बाई 2। फोर्स कितना है भाई, मैक्सिमम फोर्स कितना है, देखो मैक्सिमम फोर्स कितना है, एफ नॉट, है ना। मैक्सिमम फोर्स इज हाउ मच, एफ नॉट। तो ए की प्लेस पर देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, पाई ए बी, मगर ये कंप्लीट सर्कल के लिए होता है, एलिप्स के लिए, मगर ये कंप्लीट एलिप्स नहीं है, आधा एलिप्स है, इसलिए पाई ए बाई 2, ए बी बाई 2। और ए क्या है, एफ नॉट है, फोर्स है, इन द फिगर इट इज गिवन। बी कितना है भाई, हाउ मच इट इज, आधे सर्कल के लिए आधा टाइम, टी बाई 2। तो वैल्यू पुट कर लो, ये आ जाती वैल्यू, 2 2 जा 4, हमारे टीचर तो 2 2 जा 4 ही पढ़ा है। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu, फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो, है ना, या फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो। इनिशियल वेलोसिटी वैसे 0 नहीं ले सकते, वरना फिर बॉल ऊपर ही नहीं जाता। तो कोई एक वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी विच इज 0 ये लीजिए। तो अपना फॉर्मूला क्या है, mu। तो सॉल्व 1 एंड 2, तो डेल्टा पी की जगह पर आप mu सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एंड u शुड बी टेक देयर ओनली, एंड m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज अवर आंसर जो ऑप्शन में गिव। रिलेटेड टू द ऑप्शन सॉल्व करना है, इसलिए ये सब कचरा करे, समझ रहे हैं, रिलेटेड टू द ऑप्शन सॉल्व करना है हमको, वरना इतना कचरे की जरूरत ही नहीं थी हमारे को। चलो भाई, आई होप दैट आगे बढ़ेंगे। आज पूरे टफ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आज पूरे टफ क्वेश्चन, कोई इजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, those who have the material read the question number 14, same page number। same page number, question number 14। A ball of mass is 0.2 kg strike an obstacle। बॉल है जिसका मास कितना है, 0.2 kg, इतना छोटा है, चलो कोई बात नहीं, 200 ग्राम का 0.2 kg बोल तो 200 ग्राम ही होता ना, 0.2 kg, है ना। तो मास कितना हो गया, 200 ग्राम का एक बॉल है हमारे पास, 0.2 kg, strike an obstacle and move angle 60 degree with the original direction। अच्छा, टफ है क्वेश्चन, देख लो भैया आज का तो क्वेश्चन पूरे टफ है। ओरिजिनल डायरेक्शन के मुकाबले में इट इज मूविंग इन द 60 डिग्री एंगल। फील करो, यहां से बॉल आ रहा है, विच ऑफ मास इज स्मॉल m, एंड ऑब्स्टिकल किसी से टकरा कर जो है, ये बॉल जो है ऐसे मूव कर गया, कितने एंगल के साथ, 60 डिग्री एंगल के साथ। आगे और पढ़ेंगे, जरा फील कर लो खाली, किसी से टकरा कर जो है बॉल इज मूविंग, हाँ जी जरा फील करो, आगे बढ़ो। ओरिजिनल डायरेक्शन के मुकाबले में 60 डिग्री डायरेक्शन वो ले लिया। इफ इट इज स्पीड इज आल्सो चेंजेस 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहले स्पीड कितनी थी इसकी, 20 मीटर थी, पहले इनिशियल स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोल्यूजन, ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद, किसी से टकराया भाई, टकराने के बाद इट टेक्स 60 डिग्री एंगल, मतलब अब उसकी वेलोसिटी ये है, और वो वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फील करो यहां पर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स रिसीव बाय द बुलेट, मैग्नीट्यूड निकालना है, बुलेट है कि बुलेट, अरे मैं नीचे का पढ़ लिएगा क्वेश्चन,
मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स रिसीव बाय द बॉल, रिसीव बाय द बॉल, इंपल्स फोर्स निकालना है आपको। इंपल्स, इंपल्स इज नथिंग बट, फॉर्मूला तो सर ने बताया होगा, आई होप दैट, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स ही निकालना है ना अपने को। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स रिसीव बाय द बॉल, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम, है ना, फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम बोल दो भाई, ये बेसिक होना जरूरी है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इंपल्स इज नथिंग बट, ये इंपल्स है फॉर्मूला, इंपल्स इज डिनोटेड बाय J, impulse is denoted by letter J, और impulse is nothing but change in momentum, और change in momentum is nothing but, हाँ जी, फाइनल P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल, और यही आपका क्वेश्चन मार्क। इंपल्स फील करो, एक फॉर्मूला दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, वरना मुश्किल हो जाएगी। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, ये भी बेसिक होना है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट चेंज इन मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मोमेंटम इज नथिंग बट m और v, ये अगर किसी को नहीं मालूम है तो जल्दी जल्दी लिख लो। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वही निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं है रे बाबा, एरिया, एरिया बन रहा ना, फोर्स इनटू टाइम इज नथिंग बट मोमेंटम, तो वो जो पैराबोला बन रहा था उसका एरिया अपने को मोमेंट, सर ने नहीं बोला क्या तुमको ये बेसिक चीजें? देखो पिछले क्वेश्चन का जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर वो क्वेश्चन का डाउट, देखो अपना जो ग्राफ था इन द प्रीवियस क्वेश्चन, 2 मिनट रुक जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन में अपने पास था टाइम और फोर्स का ग्राफ, इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव ए टाइम एंड फोर्स का ग्राफ, तो ये ग्राफ अपना ऐसे बना था। मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम, मैं वही बात इधर भी बता रहा हूं, मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम, तो ये जो एरिया बनता एलिप्स का, यही तो मोमेंटम होता, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स और टाइम, ये एरिया मोमेंटम बनता है। ग्राफ टॉपिक ऑलरेडी यू कंप्लीटेड ना इन द स्ट्रेट लाइन, आई होप दैट ग्राफ के आपने टॉपिक खत्म किए होंगे स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए तो लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। तो देखो भाई, अगर नहीं भी खत्म करे तो आप यकीन करो, देखो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ बनता है, ये एरिया जो बनेगा, ये एरिया, एरिया, ये एरिया एलिप्स का आधा एरिया बन रहा है, इस वजह से मैं बाई 2 लिखा, देखो इधर आधा एरिया, ये एरिया जो है अपने को मोमेंटम देता, क्या देता? मोमेंटम, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम इज नथिंग बट मोमेंटम, द एरिया ऑफ द ग्राफ इज नोन एज मोमेंटम, आधा एरिया है इसीलिए आधा, बेसिक सही नहीं है अपनी, इस वजह से प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, मैं इस वजह से डायरेक्ट लिखा था, एरिया क्या है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब चेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी अलग अलग आएगी उधर, है ना। एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन, लिख लो इधर, नहीं तो एवरीवन शुड राइट दैट वन, एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम इज नोन एज मोमेंटम। इन दिस क्वेश्चन यहां पर लिखो ग्राफ के बाजू, एरिया ऑफ ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं है वो, मोमेंटम का ये फॉर्मूला नहीं है, मोमेंटम का असली फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम है, बट ये एरिया जो है इन दिस ग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये मोमेंटम। इस वजह से ग्राफ का अपना टॉपिक अलग से स्ट्रेट लाइन में पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग, ये कंफ्यूजन होते, प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसको कौन समझाएगा? फिर भी मैंने समझा दिया अच्छे से, हाउ मच आई कैन, वरना फिर पूरा ग्राफ का टॉपिक लेना पड़ेगा मुझे। तो हर टॉपिक यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यही बहुत खराबी है अपनी, तो जो भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग स्लो, मैं स्लो जा रहा हूँ, जाने दो 2-3 क्वेश्चन ही सही, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए भाई, अभी ये देखो, ये भी टफ क्वेश्चन हो गया, टफ क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन चाहिए पूरे, आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल। नॉट कंप्लीटेड कर लो, और हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, स्क्रीनशॉट्स लेने की कोशिश ना करो, घुसा मार दूंगा, मंडे मिलो, देखो उसके बाद। चलो भाई, राइट फर्स्ट, आगे बढ़ेंगे, 3 बज गए देखो।
क्या था क्वेश्चन? बॉडी ऑफ मास कितना है? 0.2 kg, एंगल 60 डिग्री लिया ओरिजिनल डायरेक्शन के मुकाबले में। आफ्टर कोल्यूजन, किसी ऑब्स्टिकल से कोल्यूजन के बाद इट टेक्स एंगल हाउ मच? 60 डिग्री। वेलोसिटी कितनी है? 10 है। पहले कितनी थी? 20। फील करो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। चलो भाई समझने की कोशिश करो, घुसा मार दूंगा अगर नहीं समझ में आया बोले तो। फील कर लो, टफ क्वेश्चन है। टफ क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। रेडी? देखो भाई, ये एक्स एक्सिस पर इट इज मूविंग, वेलोसिटी कितनी है? 20। अरे यस और नो? तो मोमेंटम कितना निकालेंगे? इनिशियली, इनिशियल जो मोमेंटम होता, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, इसमें कोई शक नहीं है। P इज नथिंग बट mv, फोर्स इनटू टाइम भी बोलते हैं बाजू। वो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ऐसे करके वो सब निकालते हैं। ठीक है, आगे पीछे मत जाओ। अगर आप मोमेंटम mv रख रहे हैं तो भी सही है। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो सब चीजें होकर फोर्स इनटू टाइम भी बना देते हैं उसको, फॉर्मूले को सॉल्व कर कर। अब फिलहाल के लिए मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूं। फील करो यहाँ पर, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम pi कितना है भाई? मास कितना है अपने पास? 0.2, वेलोसिटी कितनी है? 20। ठक ठक, तो कितना आया मोमेंटम? 4 pi। मोमेंटम कितना मिला मेरे को? इनिशियल मोमेंटम pi। स्लो स्लो करेंगे, फील करो यहाँ पर, पागल हो जाओगे वरना। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है? हाउ मच इट इज? 0.2, वेलोसिटी कितनी? 20। ठक ठक उड़ गया 0.0। नेक्स्ट 2 2 जा 4। इनिशियल है, घुसा मार देना मैंने, इनिशियल है खाली, वो आई लिखो वहां पे, पी आई इनिशियल। कहां का? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पर ही जा रही थी ना, वाई एक्सिस पे तो नहीं जा रही थी। एक्स एक्सिस पर इट इज मूविंग। अरे आगे बढ़ो। बट ये फोर्स देखो, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई अपने को। दिस फोर्स आफ्टर आफ्टर क्या है जी, कोल्यूजन विद द ऑब्स्टिकल, इट मेक एंगल 60 डिग्री। फील करो यहाँ पर। और वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। पहले कितनी थी? 20। बट ये बीच में जा रहा है, ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है। हाँ, तो नाउ वी कैन टेक आउट द कंपोनेंट ऑफ दैट। अब कभी भी ऐसा केस आए तो ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि कंपोनेंट लेना है। एनी हाउ कंपोनेंट लेंगे, वरना फिर हम कैन नॉट फाइंड आउट। वरना ये बॉडी किधर जा रही है? वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर कितनी है? तो यहां पर यूज करेंगे u cos 60, और इसका परपेंडिकुलर हो गया u sin 60। अब बोल सकते एक्स एक्सिस पर हाउ मच वेलोसिटी, वाई एक्सिस पर हाउ मच वेलोसिटी। हाँ, अब ये वेलोसिटी से हमको कोई वास्ता नहीं है, छोड़ दो इनको। इधर वेलोसिटी वाई एक्सिस पर कितनी है? 0। मोमेंटम ऑन वाई, ये मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस। अब मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस बोलो कितना था यहां पर? मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस कितना है? 0 है। वाई एक्सिस पर मोमेंटम है ही नहीं, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। इन द सेम वे यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिया, u cos थीटा और u sin थीटा। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी u cos थीटा, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी u sin थीटा। चलो इसका मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम फाइनल है ये। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस देखेंगे पहले। मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस। इनिशियल नहीं, फाइनल देखना है। ये तो इनिशियल हो गया। एक्स एक्सिस पर मोमेंटम कितना है? 4। वाई एक्सिस पर फाइनल मोमेंटम कितना होगा देखेंगे। मास कितना है भाई? 0.2 इनटू वेलोसिटी कितनी है? मास इनटू वेलोसिटी ना फॉर्मूला, u cos 60। फील करो यहां पर जरा, u cos 60। नहीं दिख रहा अभी तो लिख लो, u cos 60, कोई मुश्किल नहीं है। तो p फाइनल कितना मिलेगा ऑन एक्स एक्सिस? 0.2 इंटू यू कितना है भाई? 10 cos 60। इधर ही लिख देंगे क्या? नहीं तो एक मिनट रुको जी जरा, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे वैल्यूज। सुनो जरा इधर, यू कितना है भाई?
u है आपके पास 10, cos 60 इज नथिंग बट 1/2 इज नथिंग बट वेलोसिटी कितनी मिल रही है 5, वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस कितनी मिल रही है 5, तो एक्स एक्सिस पर मास इंटू वेलोसिटी 5, तो कितना मिला 0.2 इंटू ये कितना हो गया भाई फाइनल मोमेंटम 1 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। आइए वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस निकालेंगे, कितना है भाई u कितना है अपने पास 10, sin 60 इज नथिंग बट √3/2, √3/2, 2 5 तो कितना मिलेगा 5√3 ऑन y एक्सिस। वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस कितना मिला, हाँ तो मोमेंटम ऑन y एक्सिस फाइनल पे फाइंड कर लेंगे। मोमेंटम ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर मोमेंटम फाइनल, वो भी कौन सा फाइनल, मास कितना है 0.2, वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस 5√3, कितनी √3 बचता शब्द 0.2 इंटू √3, सॉरी 5√3, तो कितना बनता √3 p फाइनल। थोड़ा फील करो भाई, समझने की कोशिश करो तुम लोग, आसान नहीं है टॉपिक। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है 20, तो मोमेंटम कितना मिलेगा मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 0.2 इंटू 20, तो आंसर कितना आ रहा 4। ये बॉडी सिर्फ ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इसका मोमेंटम वेलोसिटी 0 है, ये लीजिए फाइनल वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम भी 0, फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस इज 0, तो मोमेंटम भी कितना हो गया 0, मास इनटू वेलोसिटी फार्मूला, तो फाइनल मोमेंटम कितना है वाई एक्सिस पर 0, इनिशियल मोमेंटम कितना है 4। उसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस। मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस देख लो, और आंसर कितना आया वेलोसिटी 5, मास इनटू वेलोसिटी एक्स एक्सिस की कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है y एक्सिस पर, इसको सॉल्व करें तो कितना आया 5√3, y एक्सिस पर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी y एक्सिस पर, फाइनल वो भी क्लियर। चलिए फॉर्मूले में रख लीजिए बस, बाकी चेंज इन, जरा फील करो इसको, चेंज इन मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का खाली चेंज इन मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस कितना होता p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल खाली एक्स एक्सिस का देखकर बोलो मुझे, फाइनल का है मोमेंटम एक्स एक्सिस पर 1, y एक्सिस एक्स एक्सिस पर कितना है 4, तो कितना लिख सकते हैं भाई 3, कितना लिख सकते हैं 3, माइनस प्लस की बात मत करो, मतलब बड़े में से छोटे को निकाल लो या छोटे में से बड़े को निकाल लो, कोई परेशानी नहीं। इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते क्योंकि इनिशियल बड़ा है ना, फाइनल छोटा है। इनिशियल कितना है 4, फाइनल कितना है 1, ठीक है, इसीलिए 4 - 1 इज 3, 4 - 1 इज नथिंग बट हाउ मच आई गॉट 3। तो इनिशियल मोमेंटम ऑन सॉरी चेंज इन मोमेंटम ऑन द एक्स एक्सिस कितना मिला 3, चेंज इन मोमेंटम ऑन द वाई एक्सिस अगेन वी कैन फाइंड, change in momentum on y axis, on y axis कितना मिलता py, कितना मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल कितना है √3, इनिशियल कितना है 0, p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल कितना है √3, ये 0, तो py कितना मिला अपने को √3। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला क्या है J इज इक्वल टू px माइनस py, देख लो रख के वैल्यू देखो, अच्छा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो आप इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, वो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है J, तो आप इसका क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे, J इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर 2px py cos 90, cos 90 इज नथिंग बट 0, cos 90 कितना 0, तो कितना आएगा भाई px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर,
वैल्यू रखो भाई जरा इधर, स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स कितना है मेरे पास 3, स्क्वायर इज 9, रूट 3 इज नथिंग बट 3, तो कितना हो गया भाई रूट 12, कितना आया रूट 12 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जरा देखो कितना हो रहा, रूट 12 को कितना लिख सकते हैं भाई 2 रूट 3 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 2 रूट 3। पागल हो गए आधे पूरे, बोले कि फिजिक्स करते, करो भाई जल्दी जल्दी करो, समझ के करो, क्वेश्चन इजी नहीं था। स्टेप बाय स्टेप जाओ, यू कैन अंडरस्टैंड। इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का, इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस का, फाइनल मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस, फिर उसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का, फिर इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। अच्छा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, तो आंसर कितना आया 2 रूट 3। परेशान हो गए बच्चे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल रहता ना, 90 डिग्री रहता, उसमें कोई शक ही नहीं है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहता। तो आज पूरे क्वेश्चन टफ हो गए और इंपॉर्टेंट भी थे, तो इसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, डू द होमवर्क, प्रैक्टिस दैट वन, विल कंटिन्यू बाय टुमारो विद सेम टफ क्वेश्चन और इजी बोथ देखेंगे। आज तो तीनों टफ थे। फॉर्मूले थोड़ा सा जहन में रखें, P इज इक्वल टू mv फॉर्मूला, P इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम भी होता, वो कैसे होता सर को आपको बता दिए होंगे। चलिए भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, मैं तब कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो कंक्लूड आज का टॉपिक, सॉल्व करें ये क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी लिख लो भाई।